जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। এই কুন্দলিকা পাখাটা আসতে পারবে, পাখাটা একটা আসতে পারবে, বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ একটু আর করো, হ্যাঁ ঠিক আছে। এরপর করলে ফুল হয়ে যাবে, এরপর করলে ফুল হয়ে যাবে। হ্যাঁ এটাই ফুলের আগে এটা 4 নম্বর মশলা। তো কাল কোথায় ছিলাম আমরা? 28 থেকে। তো ঠিক আছে, আমার সঙ্গে তা বলো। अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव परम में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने का क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे भगवान अभी अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्यों लड़ना चाहिए, क्यों लड़ाई करना चाहिए। भगवान किसको बता रहे हैं? अर्जुन को। इन मीनिंग को पढ़ो, तू पढ़ो। तात्पर्य আমরা তো পড়ে দিচ্ছি আমি। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয় শ্রেণীর দার্শনিকদের মতবাদকে মেনে নিলেও কোনো ক্ষেত্রেই শোকের কোনো কারণ নেই। যারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, বৈদিক মতাবলম্বীরা তাদের নাস্তিক বলে অভিহিত করে। এমনকি যদি তর্কের খাতিরে এই নাস্তিক মতবাদকে সত্য বলে গ্রহণ করাও হয়, তাহলেও অনুশোচনা করার কোনো কারণ নেই। আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা ছেড়ে দিলেও সৃষ্টির পূর্বে জড় উপাদানগুলি অব্যক্ত থাকে। এই সূক্ষ্ম অব্যক্ত স্তর থেকে ব্যক্ত আকারের প্রকাশ হয়। যেমন আকাশ থেকে বায়ুর উদ্ভব হয়, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে মাটির উদ্ভব হয়। এই মাটি থেকে নানা আকারের প্রকাশ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি বৃহৎ অট্টালিকার প্রকাশ হয় মাটি থেকে। যখন সেটিকে ভেঙে ফেলা হয় তখন তা আবার অপ্রকাশিত হয়ে পড়ে ও অন্তিমে অনুরূপে অবস্থান করতে থাকে। শক্তি সংরক্ষণের নীতি বর্তমানই থাকে, কেবল সময়ের প্রভাবে কখনো তার প্রকাশ হয় এবং কখনো তা অপ্রকাশিত হয়ে পড়ে। সেটিই হচ্ছে পার্থক্য। সুতরাং এই প্রকাশ বা ব্যক্ত ও অব্যক্তের জন্য শোক করার কি কারণ থাকতে পারে? যে কোনোভাবেই হোক, এমনকি অব্যক্ত অবস্থাতেও বস্তুর বিনাশ হয় না। আদিতে ও অন্তে জড়ের রূপ থাকে না, কেবল মধ্যে তা প্রকাশিত হয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় এবং তা প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্য নিরূপণ করে না। আর আমরা যদি ভগবদ্গীতায় উক্ত এই বৈদিক সিদ্ধান্তকে মেনে নিই যে জড় দেহটি কালের প্রভাবে বিনষ্ট হবে কিন্তু আত্মা চিরশাশ্বত, তাহলে আমাদের সবসময় দেহটিকে একটি পোশাকের মতো বলে মনে করতে হবে। তাই এই পোশাকটির পরিবর্তনের জন্য কেন আমরা শোক করব? আত্মার নিত্যতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতপক্ষে জড়দেহের যথার্থ কোনো অস্তিত্বই নেই। এটি অনেকটা স্বপ্নের মতো। স্বপ্নে যেমন কখনো আমাদের মনে হয় আকাশে উড়ছি অথবা রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে আছি, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হলে আমরা দেখতে পাই যে আমরা আকাশেও উড়িনি অথবা সিংহাসনেও বসিনি। বৈদিক জ্ঞান আমাদের দেহের অনিত্যতার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান উপলব্ধি করতে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং কেউ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করুক, আবার আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই করুক, কোনো অবস্থাতেই জড়দেহের বিনাশের জন্য শোক করার কারণ নেই। বোঝা গেছে? হ্যাঁ
দুটো পার্ট করে দুটো পার্ট ফার্স্ট পার্টটা একটু ক্লিয়ার হবে। एक्चुअली हमारे ये शरीर हमारा शरीर 5 चीज़ों से बना हुआ है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये पांचों चीज़ शुरू में अव्यक्त होते हैं। अव्यक्त मतलब जिस होता है सूर्य प्रकट होता है, सूर्य अप्रकट होता है। तो सूर्य अभी सुबह में प्रकट हुआ, शाम को अप्रकट होता है। सूर्य मरता या जीता नहीं है। ऐसा हम नहीं बोलते कि सूर्य आज को सकाल आवाज जन्म नहीं चाहिए बिकले मरे जावे। वैसे हमारा भी है, हम प्रकट होते हैं अप्रकट होते हैं, बीच में कुछ देर के लिए रहते हैं। ये हमारी बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि जल वायु भूमि जल अग्नि वायु आकाश, इससे बना हुआ है। और ये पांचों चीज़ परम में होते हैं, परम में शुरू में नहीं होते, बीच में होते हैं और बाद में फिर नहीं होते। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये पूरा भौतिक जगत है, ये जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड है, इट्स लाइक ड्रीम। इसको बताया ना, कृष्णा के श्लोक बताते हैं कि दुख्यालय आज शाश्वतम। आज शाश्वत मतलब क्या होता है? टेम्पोररी। तो ये पूरा दुनिया ही टेम्पोररी है। जेल में अगर कोई जेल में कोई बंदा जाता है तो परमानेंटली जाता है क्या? उसका जो भी सज़ा होता है काट के बाहर आ जाता है। तो ये भौतिक दुनिया भी जेल की तरह है। हम गलती किए थे, हमको सज़ा भुगतना है, सज़ा भुगत के हमको यहाँ से ट्राई करके निकल जाना चाहिए। लेकिन कोई अगर जेल में सज़ा भुगतता है या एहसास ही नहीं करे तो कैसे निकलेगा इसको? तो वो एहसास दिलाने के लिए भगवत गीता या भगवान कृष्ण जो बताया है हमको उसको समझना चाहिए। क्योंकि हमें से किसी को पता नहीं है कि हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। हंसना मतलब क्या होता है कि हमको तकलीफ़ हो रहा है, हमको दुख हो रहा है, हम हर बार माँ के पेट में जाते हैं, जन्म लेते हैं, फिर पेट से बाहर निकलते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई करना, परिवार बनाना, समाज को झेलना। क्योंकि ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है कि हमको गुस्सा नहीं आता हो किसी के प्रति, चाहे खुद के प्रति, परिवार के प्रति, बेटे के प्रति, बीवी या पति के प्रति। तो हमारा जो वास्तविक हैं वो वी रियल, उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए। और हमारा ऐसा ही है, हमारा जो एक्चुअल स्वरूप है दैट इज सत चित्त आनंद, सच्चिदानंद। अब भगवान कृष्ण भी सच्चिदानंद है। भगवान कृष्ण को गुस्सा नहीं आता है। भगवान कृष्ण जब धरती पे आए हुए थे लीला करने के लिए, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनको भी शिशुपाल गंदा गंदा बात बोलता है, उनको भी दुर्योधन बंदी बनाने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान के चेहरे पर हमेशा स्माइल रहता है। तो हमारा भी वही कैरेक्टर है। लेकिन हम सबकी भौतिक जगत में है और हम शरीर को ही खुद को मान बैठे हैं। तो शरीर पर जो भी होता है उसके लिए हमको दुख या तकलीफ होता है। लेकिन जो हम हैं एक्चुअली, हम आत्मा हैं और आत्मा को सुख दुख का कोई आभास नहीं है। हमने कल पढ़ा था कि माता स्पर्श तू कौन थे शीत उष्ण सुख दुखदा। उसमें जो लास्ट वर्ड है आगम अपायनो अनित्यम तान तितिक्षस्व। ये तान तितिक्षस्व वर्ड का मतलब होता है सहन करना सीखो। तान तितिक्षस्व भारत। जैसे कि कल का एग्जांपल दे रहा हूँ। कल हम लोग का स्टोर बहुत सारा उल्टा पुल्टा हुआ, मटेरियल क्वालिटी बहुत इशू, बट एकदम गौतम भी ठंडा, मैं भी ठंडा, क्योंकि हमको सोल्यूशन निकालना था। अगर गुस्सा करते नाराज होते तो किसका नुकसान होता? हमको नुकसान होता। ठंडे दिमाग में हम सोल्यूशन सोच सकते हैं। अगर दिमाग ठंडा होता है हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन दिमाग गर्म होता है तो हम कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि बाद में हमको रिग्रेट होता है, यार नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। या हम जिसको बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी को हम हाथ काट दे एक बार या कि चाकू से मार दे तो शायद 6 महीने साल अपना घाव भर जाएगा। लेकिन अगर किसी को ज़बान से कोई काला शब्द बोल दे तो ज़िंदगी भर अगर 10 साल बाद मिलता है तो बोलता है कि तू हमें बोले छे समय एखनो मने आछे। तो हमको कुछ भी बोलना चाहिए तो बहुत सोच समझ। और हम गुस्सा तभी आता है, देखो मैं फिर से बोलता हूँ, गुस्सा तभी आता है जब हमको लगता है कि सामने वाला हमको क्यों बोल रहा है। लेकिन अगर हम रियलाइज़ कर लें कि ये भी हमारा कर्म फल है। मैंने बहुत एक्चुअली पता है ना, मेरा हमेशा बोलने का मकसद क्या होता है कि हमको सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए गुस्से के ऊपर, सबसे पहले। और गुस्सा हमको तभी आता है जब हमको लगता है कि सामने वाला हमको गलत बोल रहा है। अब हम ये समझ जाए कि कोई भी बोल रहा है, अगर ये नहीं बोलता तो ये बोलता, ये नहीं बोलता तो ये बोलता, कोई ना कोई बोलता, क्योंकि वी डिज़र्व दैट, मी डिज़र्व दैट, मैं ये डिज़र्व करता हूँ। हमको ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी होता है इट्स अ प्री प्लान अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा। उस प्लान की वजह से हम क्या रिएक्ट करते हैं वो हमारा रिएक्शन होता है, और उसके रिएक्शन से फिर हमको जन्म मिलेगा। ये बहुत अपने दिमाग में डाल लो सब कोई। आज हम जो करेंगे वो हमको बाद में रिएक्शन झेलना पड़ेगा। अभी जो झेल रहे हैं वो हमारे पहले का रिएक्शन। अगर मान लो किसी भी बहुत सुंदर है तो उसका कोई कर्मा था। भीष्म पितामह जब शांतनु के 7 बेटों को नदी में डाल दिया गया, गंगा ने डाल दिया था, ये बताया था कहानी मैंने तुम लोगों को, याद है ना? जब क्लास शुरू किया था तो शांतनु के 7 बेटों को गंगा नदी में डाल देती है, मार देती है, पैदा होते ही मार देती है। 8वां बेटा भीष्म पितामह होते हैं, तो उनके टाइम पे शांतनु रोक देते हैं,
बोलते हैं कि नहीं गंगा तुम 7 बेटों को पानी में डाल दियो, कोई माँ अपने बेटों को कैसे डाल सकती है। लेकिन ना गंगा ने शादी करने के पहले भीष्म वो क्या नाम है शांतनु से ये वचन लिया था कि मैं शादी तभी करूँगी आपसे जब आप मेरे को इंटरफेयर नहीं करो, मैं जो करूँगी जो मन आएगा सो करूँगी, शॉपिंग करूँ, आइसक्रीम खाऊँ, कहीं भी जाऊँ, आप मेरे को पूछोगे नहीं। तो तभी बेचारा औरत के प्यार में बावला था, हाँ कर दिया, हाँ ठीक है आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, जो मन सो कर लेना। लेकिन जब शादी हो गया तो पहला बच्चा जब पैदा हुआ तो हर कोई बाप खुश होता है कि हमारा पहला बच्चा है। गंगा बच्चों का डिलीवरी करती है, उठाती है गोद में ले जाके, और वो सब लड़के होते हैं, सब लड़के उठाई गोद में और चुपचाप शांतनु महाराज देख रहे हैं गंगा लेके जा रही है और जाके गंगा के जल में विसर्जित कर दी जिंदा शिशु को। पहला बच्चा गया, दूसरा बच्चा गया, तीसरा बच्चा गया, और हर बार शांतनु देख रहे थे कि मेरे बच्चों को ले गंगा में डाल रही है। लेकिन उनको वचन याद था कि गंगा ने पहले वचन ले लिया था कि आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, मैं जो मन में सो करूँगी, आपको बोलना नहीं है। तो शांतनु महाराज कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन 8वां बच्चा जो होता है उसको रोक देते हैं, नहीं देख पाते। कोई बाप कैसे देखेगा अपने सामने 7 बेटों को, कोई माँ अगर पानी में डाल दो बाप कैसे देखेगा, रोक देते हैं 8वें टाइम के। 8वां बच्चा जो है वो देवव्रत यानी भीष्म पितामह थे। तो गंगा बोलती है कि आपने रोक दिया, मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बच्चों को बड़ा करके काबिल बना के आपको दे के जाऊँगी मैं। वही बच्चा भीष्म पितामह होते हैं और भीष्म पितामह सजा भुगत रहे हैं। भीष्म पितामह ने गलत कर्म किया था, क्योंकि भीष्म पितामह इज अ वसु, 8 वसु होते हैं, देयर आर 8 वसु। उसमें 7 वसु को एक्चुअली 8 वसुओं ने ऋषि के लिए अपराध किया था पिछले जन्म में। एक ऋषि का मजाक उड़ाया था 8 वसुओं ने मिलके, और मजाक उड़ाने का प्लान था भीष्म पितामह का। पिछले जन्म की बात हो रही है, ये लास्ट वर्ष का बात हो रहा है। तो उसने श्राप दिया था कि मैं 8 बच्चों को श्राप देता हूँ कि तुम लोग जेल जाओगे, जेल मतलब इस भौतिक जगत में जाओगे, तुम लोग मृत्यु लोक में जाओगे। तो सब लगे रोने के लिए, नहीं नहीं प्लीज़ हमको माफ़ कर दिया, हमने गलती कर दिया। तो 7 को उन्होंने बोला ठीक है तुम 7 जाओगे, धरती को छू कर वापस आ जाओगे। लेकिन प्लान किसका था? तो प्लान था इसका, जो भीष्म पितामह थे पिछले बर्थ में, उनका प्लान था पर तुमको धरती पर जाके टाइम बिताना पड़ेगा। तो देखो भगवान का सब हिसाब है ये। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भीष्म पितामह जैसे लोगों ने भी सज़ा भुगता है। यहाँ तक कि एक बार क्या होता है कि नारद जी को नॉक करा क्या, हाँ ठोकना नहीं है, देखो दक्षिणा वो संतोष वापस घुसा अंदर गया, हाँ अंदर घुसा। एक बार देखो भगवान भी श्राप लेते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, तुम लोग के साथ और क्लियर होगा कि भगवान भी ऐसे में भगवान से अपराध हो तो भगवान, देखो भगवान क्या है ना, किसी का श्राप भी काट सकते हैं। अब भगवान को कोई श्राप देता है कि आप तुम्हें श्राप दीची, तुम्हें बैंग हो जाओ, तुम्हें सांप हो जाओ, तो भगवान भी श्राप लेते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसका। एक बार क्या होता है कि नारद मुनि पता कौन है? हिंदी मूवी में दिखाया जाता है कि जोकर है। इट्स नॉट जोकर, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और उनका काम है भक्ति का प्रचार करना। वो तीनों लोकों में घूमते हैं, ही इज़ ओनली पर्सन जो तीनों लोकों में जा सकते हैं। विष्णु बैकुंठ भी जा सकते हैं, ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं, पाताल लोक में भी जा सकते हैं। नारद जी कहीं भी जा सकते हैं, उनका बॉडी ऐसा बना हुआ है। तो नारद जी एक बार उनको मतलब वो गए थे किस राजा के नगरी में, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो पता चला वहाँ पर कि उन राजा के बेटी का शादी होने वाला है। तो नारद जी तो सन्यासी आदमी को शादी नहीं करना था, लेकिन उनके बेटी को जब देखा उन्होंने, उनको शादी का बहुत भयंकर मन हो गया, बहुत भयंकर। तो जाके बोले विष्णु को कि प्रभु आप तो मेरे का एक कोई अच्छा सा रूप दे दो, मेरे को कोई सुंदर रूप दो, ताकि मैं भी जाके समय में जाऊँ और लड़के आके मेरे को वरमाला डाल दे। क्योंकि बहुत सारे राजा आए होंगे, सबसे सुंदर तो मैं लगूँ, मेरे को कुछ आता तो है नहीं, मेरे को कम से कम ये बता दो कि मैं सुंदर बन जाऊँ। भगवान ने बोला कि अच्छा नारद शादी करेगा, ठीक है। भगवान बोले ठीक है जाओ तुम्हारा शादी हो जाएगा। पता भगवान ने क्या किया, उनको बंदर का रूप दे दिया, बंदर का। नारद को पता नहीं होता, अगर बहुत सुंदर, बहुत मुझे लगा कि ऋतिक शाहरुख लग रहा है। हम चले गए वहाँ पे समारोह में, जाके बैठे तो औरतें, मतलब वो जो जिनका शादी था वो महिलाएं जा रही थी, मतलब वो राजकुमारी जा रही थी, उनको तब देख के मुंह घुमा के चली आई, देखी नहीं ठीक से। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या हुआ कि सबको देखी, मेरे को देखी भी नहीं ठीक से। जब समारोह खत्म होने का था उनका उनसे वो शादी नहीं होता है। तो पानी में अपना प्रतिबिंब देखते हैं नारद जी, उनको बहुत गुस्सा आता है विष्णु के ऊपर, और जाके विष्णु को उल्टा पुल्टा बोलते हैं कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मैं तुमको श्राप देता हूँ। किसने श्राप दिया? नारद ने विष्णु को, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुमने जिस बंदर का मजाक उड़ाया है वही बंदर तुम्हारे को काम आएंगे जब तुम राम बन के आओगे। अब बिना उनके सहायता से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो राम को जब धरती पर आते हैं, भगवान जब अवतार लेकर राम के रूप में आते हैं, तो बंदर उनका हेल्प करते हैं सीता को जीतने के लिए।
तो भगवान श्राप नहीं ले सकते थे। भगवान को क्या पड़ता था एक्चुअली, सारा मैंने बताया था ना कि भगवान से सारा श्राप और वरदान जनरेट होता है। जैसे कि हमारे ऑफिस में क्या होता है कि मैं तो प्रवीण चेक पे साइन करते हैं, चेक के बुवाई काटता है, कभी अर्चना करते हैं, कभी ये लेके चेक आता है, फिर साइन कौन करता है, मैं या प्रवीण। तो सिमिलरली कोई भी वरदान या आशीर्वाद मिलता है या कोई भी श्राप मिलता है, सबका कंट्रोलर भगवान है। भगवान चाहे तो श्राप नहीं ले सकते थे, तो भगवान भी श्राप लेते हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस करते थे हम लोग इसके बारे में? हाँ, तो वही भीष्म पितामह ने भी श्राप लिया था। और भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान, लेकिन उनको श्राप मिला था मृत्युलोक में आने के लिए। तो हमको ये समझना चाहिए, हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ा रीज़न हमारे क्या बोलूँ, पतन का, हमारे पतन का बहुत बड़ा कारण है गुस्सा। और मैं फिर से बताता हूँ कि गुस्सा कंट्रोल करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी आज लाइफ जी रहे हैं उसका कारण हम ही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि लाइफ में तकलीफ आ गया तो वो तकलीफ दिया, वो तकलीफ दी। जैसे कि कुछ भी होता है मेरे साथ, यहाँ तक कि अगर मेटल रिजेक्ट भी होता है, ये भी मानता हूँ कि कृष्ण की वजह से हो रहा है, इसका कोई कारण नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न। हमारी ज़िंदगी में कुछ भी होता है तो बिना भगवान के परमिशन का नहीं हो सकता है। अगर हम वहाँ तक चले गए इस लेवल पे तो हमको गुस्सा थोड़ा थोड़ा कम होना चालू हो जाता है। और हमको ये लगता है कि हमारा पति बुरा है, हमारी पत्नी बुरा है, मेरे बेटे बुरे हैं, मेरा ऑफिस का कॉलीग बुरा है ना, तो और देखो हमारे पास दुखी होने का 1000 कारण है। हमारे लाइफ में हमको दुखी होने का 1000 कारण है। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि सर इस कारण से, कभी कोई अपने बीवी की वजह से दुखी होता है, कभी कॉलीग की वजह से, कभी बाहर में रास्ते जा रहे लड़ाई कर लिया, वहाँ दुखी हो गया। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमको कैसे अपना गुस्सा कम करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं गुस्सा कम करने के लिए तुम लोग को निर्जला एकादशी दिन वो चैंटिंग माला दिया था, कोशिश करो हर एक दिन माला करने का, एक दिन एक माला करने का। तुम देखोगे ना कि 2-3-4 महीने में बहुत कंट्रोल आएगा गुस्से के ऊपर। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर कोई ये मानता है, जैसे कुछ लोग जैसे कि जो निर्विशेषवादी हैं, ये जो मायावादी है, वो मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है या आत्मा मरता है। तो भगवान बता रहे हैं कि आत्मा मरता है तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लिया है वो मरेगा। देयर इज़ नो परमानेंट, इस धरती पर परमानेंट कोई नहीं है। हमने बताया था एक दिन कि भगवान का जो अकाउंट्स है ना, वो सतीत की तरह नहीं, अर्चना की तरह नहीं है कि भूल जाएगा कोई। भगवान का अकाउंट बहुत परफेक्ट है। 700 करोड़ इस धरती का आबादी है। कितना? 700 करोड़। और एक बंदा कभी नहीं बोला अरे मैं बच गया, 300 साल हो गए, भगवान ने मेरे को भूल गए ले जाना। कोई नहीं। कौन? हाँ, सोल परमानेंट। मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी की बात कर रहा हूँ। हमारे इस जगत में, इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी पे 700 करोड़ मनुष्य हैं, 700 करोड़ ह्यूमन बींग है। और इस 700 करोड़ ह्यूमन बींग में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं बचा है जो ये बोल दे कि 200 साल हो गए, 300 साल हो गए और मेरे को भगवान मारना भूल गए, मैं बच गया। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो भगवान का जो काउंट है बहुत सॉलिड है। और सिर्फ इतना सॉलिड है कि हमको कहाँ जाना है, किस माँ के पेट में जाना है, किस फैमिली का मेंबर बनना है, भगवान यहाँ तक डिसाइड करते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। और हर एक के लिए, ऐसा नहीं कि मेरे लिए या इसके लिए, हर एक के लिए। अगर हम इस घर में पैदा हुए हैं, हमारा कर्म है कि हम करोड़पति घर में पैदा हुए, अरबपति घर में पैदा हुए, या मिडिल क्लास फैमिली पैदा हुए, या बिलो मिडिल क्लास फैमिली पैदा हुए हैं, तो कम से कम इस जन्म हम जो कर्मा करेंगे, नेक्स्ट जन्म में हमारा कहाँ पैदा होना है उसके हिसाब से हमको मिलेगा। श्लोक नंबर 29 बोलो। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य के साथ सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। देखो भगवान हमारे बारे में बता रहे हैं, हम लोग आत्मा के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, जान गए तो समझते नहीं हैं। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि आत्मा के बारे में वो समझ सकता है, या जैसे कि अभी हम इतना लोग बैठे हुए हैं, हम लोग क्लास में इतना क्लास में बैठे हैं, तो कैसे समझ में आएगा क्योंकि आत्मा को जान गया है, क्योंकि उसका शहर रहन सहन चेंज हो जाएगा, उसका रूटीन चेंज हो जाएगा, वो शरीर से ज़्यादा लगाव नहीं रखेगा। देखो शरीर से लगाव ये नहीं है ना कि हमको अच्छा ड्रेस नहीं पहनना है।
अच्छा ड्रेस पहनना है, और ऑफिस में तो ऑफिस में हम गंजी में तो नहीं आ जाएंगे सैंडो गंजी पहन के। शरीर से आसक्ति खत्म होने का मतलब है ना, हम शरीर से ज़्यादा अटैच नहीं होंगे। मैं दिन में 3 बार नहाता हूँ, 3 बार, ऐसा नहीं कि सुंदर लगने के लिए। 3 बार क्यों नहाता हूँ? क्योंकि शुद्धिकरण के, शरीर को शुद्धिकरण के लिए। तो आसक्ति मतलब क्या होता है ना कि अपना रूप को बहुत ज़्यादा देखना आईने में। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ कांच दिखा ऐसे से चालू हो गए, बाइसेप, ट्राइसेप, बॉडी सेप देखना चालू। बहुत लोग ऐसे हैं, द लॉट्स ऑफ पीपल। इवन हमारे ऑफिस में था विभाष, मेरा कॉलीग था, जहाँ खड़ा होता आईने में फिक्स हो जाता ऐसे ऐसे। मैं बोला क्या कर रही है? तो ये इसको बोलते हैं शरीर से आसक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर, अपने आप को देखकर खुश हो जाना, अरे कितना सुंदर हूँ मैं, क्या सुंदर हूँ। यहाँ पे शाहरुख खान ने टिक पाया, दिलीप कुमार जो इतना बड़ा स्टार था, उसके लिए मैंने सुना है देवानंद के बारे में, पापा बताते थे, उसका काला कोट पहनना मना था तब के टाइम में, जब देवानंद, आई मीन एट दैट टाइम वह सुपर स्टार, मेगा स्टार था। काला कोट पहनता तो शायद कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो देवानंद काला कोट पहन के पब्लिक प्लेस में नहीं जाएगा, लड़के बेहोश हो जाती थी देख के उसको, और इतना क्रेज था उसके लिए। वो देवानंद क्या हुआ, बुढ़ापे में सड़ के मरा है, उसको देखने में कोई नहीं गया मरते टाइम में। तो किस शरीर का हम गुमान कर रहे हैं? क्या शरीर लेकर फ़ायदा हमारे को? और ऐसा नहीं है कि जो आस्तिक है वो मरेगा और नास्तिक जी जाएगा, सबको मरना है, जो भगवान को माने चाहे नहीं माने। तो शरीर से आसक्त नहीं होना है। शरीर के लिए ड्यूटी है, शरीर के लिए ड्यूटी क्या है? शरीर को खाना पीना देना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये सब जरूरी है, लेकिन आसक्त नहीं होना है। और शरीर से आसक्त, पता है रीज़न क्या है ना, हम जाएंगे, अगर मेरे घर जाओगे तो मेरे घर में भी मेरे फोटो लगा हुआ है, ऐसा बड़ा फोटो लगा हुआ है, बड़े बड़े बाल हैं ऐसे हेयर में लगा के। तो सबके घर में क्या होता है कि भले आदमी बूढ़ा हो गया, अभी 55 साल का हो गया है, लेकिन जवानी का फोटो टंगा रहता है दीवार पे सबके घर में, क्योंकि बूढ़ा फोटो किसको पसंद नहीं है। तो इसको बोलते हैं शरीर से आसक्ति। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो उम्र 55 का हो गया, लेकिन बाल और कलर करवा कर जीन्स फटाफट पहन के घूमते हैं। तो क्या होगा, इससे मरेंगे नहीं। तो ये दैट इज़ कॉल्ड शरीर से आसक्ति। तो शरीर से आसक्ति नहीं करना है, शरीर का सेवा करना है। क्यों? क्योंकि इसी शरीर के साथ है, इसी शरीर से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। हमारा देखो, ये शरीर हमारा नहीं है। अगर मैंने बताया था कि अगर कोई सुसाइड करता है, भगवान उसको शरीर क्यों नहीं देते? क्योंकि भगवान का शरीर हम ख़त्म नहीं कर सकते बिना भगवान की मर्जी के। जैसे ऑफिस में किसको लैपटॉप दिया है, कोई तोड़ दिया क्या लैपटॉप बिना मेरी मर्जी के? लैपटॉप दिया काम करने के लिए, उस ऑफिस का काम करो, जॉब करो, ऑफिस का ड्यूटी करो। लेकिन कोई लगा नहीं लैपटॉप मेरा है तो मैं तोड़ दूँ तो लैपटॉप उसको दोबारा नहीं मिलेगा, और साथ में निकाल भी दूँ कंपनी से। सेम यहाँ पे भगवान ने शरीर दिया है, शरीर का सेवा करके स्वस्थ करने के लिए, ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। कोई सुसाइड कर ले किसी लड़की के लिए, अब देखो ना, ये जो नेता लोग क्या करते हैं, वो भी उपवास करते हैं, किसके लिए? पोजीशन के लिए, पोस्ट के लिए। हर दिन आता है पेपर में, अरविंद केजरीवाल उपवास करते करते दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया इतना उपवास करना है हज़ारे के साथ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, यहाँ तक कि कोई राष्ट्रपति हो किसी बड़े देश का, मरना सबको है। अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बचा, न्यूटन नहीं बचा, अब्राहम लिंकन नहीं बचा, हम बच जाएंगे क्या? तो ये शरीर से नहीं बता रहा हूँ कि क्या, इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी करो शरीर से अटैच होकर नहीं, सही से डिटैच होकर ड्यूटी करो। अपना फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, सेवा करो। लेकिन इन सब के ऊपर भी है हमारा खुद का सेवा करना, खुद को तैयार करना भगवान के सेवा के लिए, और इसके लिए हमको शरीर मिला है। अगर शरीर का कोई कदर नहीं करता है तो नेक्स्ट बर्थ उसको ये शरीर नहीं मिलेगा, ये नोट कर लो। अगर शरीर को हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, खुद को सुंदर बनाने के लिए, बताया था ना कहानी मैंने तुम लोगों को, औरत थी वो दुकान पर जाती है और जाके दुकान पे सबसे महंगा पिंजरा खरीदती है, सबसे महंगा पिंजरा सोने का पिंजरा लेके आते, उसमें तोता भी रहता है, लेके घर आती है, और तोते को तो छोड़ दो, पिंजरे को रोज़ नहलाती है, सुबह शाम 3 टाइम नहला कर पिंजरे को साफ़ करना, पिंजरे का धूल झाड़ना सब करती है। और 5-6 दिन बाद तो तोता मर जाता है, वो तोता मर जाता है। मरने के बाद दुकान पर गुस्से में दुकान पर जाती है, बोलते दुकानदार को जाके कि ये आपने क्या पिंजरा दिया मेरे को, ये पिंजरा नहीं चलेगा, आप मेरे को चेंज करिए। दुकानदार बोलते कि सबसे महंगा पिंजरा लिया आपने, सोने का पिंजरा, तो क्या प्रॉब्लम? बोलते इसमें तोता मर गया। तो बोले कि तोता कैसे मर जाएगा? तो फिर उसने दुकानदार ने पूछा, अपने तोते को खाना दिया था क्या? और नहीं। तो तोते को खाना नहीं देंगे, भले पिंजरे को साफ रखेंगे तो क्या फ़ायदा? तोता तो मरेगा। तो हमारा तोता कौन है? हमारा आत्मा, हमारा तोता है। हम पिंजरे को साफ रखें, पिंजरा सबका पिंजरा चकचक है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जो चकचक सब चकचक लग रहा है, लेकिन सबका आत्मा दूषित है, सबका आत्मा खराब है। तो तोते को भी साफ करना ज़रूरी है।
और तोते को साफ करने के लिए मैंने तुम लोग को निर्जला एकादशी उस दिन वो दे दिया है, उसका खाना क्या है। तो कम से कम मैं फिर से बोलता हूँ, एटलीस्ट हर दिन एक माला सब किया करो, किसी अवस्था में, चाहे कितना भी बुरा लगे, ठीक है मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, मन नहीं लगा तो एक माला प्रैक्टिस क्या करो करने के, एवरीडे एटलीस्ट 1 राउंड ऑफ चैंट एवरीडे, मतलब एवरीडे 1 राउंड किया करो तुम लोग। और धीरे धीरे जिसको मज़ा आ जाता है बढ़ाओ धीरे धीरे अपना। 81 के दिन रिपा, आई मीन 2 बच्चे ना छोटे घर में, 2 छोटे बच्चे हैं और उस दिन काम वाली भी नहीं आई थी। सी हैज़ डन 108 राउंड ऑफ चैंट, 108 राउंड। मेरा 64 हुआ था ऑफिस आके, मैडम 108 इंटू 8 मिनट कर लो, देखो कितना टाइम लगा होगा शायद। 108 इंटू 8 कर लो, शायद 5-6 घंटा। घर में दोनों बच्चों को संभाल के घर का जिम्मेदारी पूरा करके 8 घंटा भगवान के लिए माला करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट रिपा ने क्यों किया? उसके भले के लिए, उसके भले के लिए। तो हम सब भी कर सकते हैं, स्पेशली जो लड़के हैं ना वो तो कर ही सकते हैं। और भी लड़कियां जो तुम लोग घर में कुछ काम तो करती नहीं हो, तुम लोग भी कर सकती हो। तुम तो लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो करती है बेचारी, शादी वादी कर ली, लेकिन तुम लोग कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि क्लास का इफेक्ट क्लास तक ही होता है, बाहर जाकर हम सब भूल जाते हैं। और ये माया का प्रभाव है, ये माया का प्रभाव। क्योंकि क्लास में हमको सुनना अच्छा लगता है, हमको लगता नहीं करना चाहिए, और हमको पता है हम सब ट्राई कर रहे हैं, तुम लोग भी बहुत ट्राई करते हो, लेकिन माया इतना ज़बरदस्त है ना, भयंकर माया है। और ये मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट ईजी एक्चुअली, इट्स नॉट सो ईजी माया से निकलना। इवन मैं कुछ प्रभु जी से बात करता हूँ जिनका एज 40-42 है, उनको अभी भी डर लगता है कि कोई लड़कों को फंसा नहीं ले। कैन यू इमेजिन? 15 साल से भक्ति में है वो लोग, 15 ईयर से भक्ति में है, सर मुड़वा लिए हैं, लेकिन अभी उनको डर लगता है कि प्रभु जी हमको डर लगता है कि हम बाहर गए, कोई लड़के फंसा ली तो हमारा ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा। तो वो डरता है, तो हमारा तो डरना बनता ही है। हम लोग तो पूरे दिन माया में पड़े रहते हैं, और माया में नॉट लाइक लड़की का लड़के का बात हो रही है, नॉट दिस अपोजिट सेक्स। इसके बारे में बात है, पैसा रुपया, परिवार, ये वो समाज, सबके बारे में। तो ठीक है वो करना है, परिवार क्यों नहीं करना, परिवार करना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि खुद का भला भी करना है। क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने बताया था कि हमारे साथ कोई नहीं जाने वाला है, फाइनल जर्नी हमको अकेले कवर करना है। अभी हम लोग साथ में क्या कर रहे हैं, साथ में जहाज उड़ाने का ट्राई कर रहे हैं। आई मीन सबको हेल्प कर रहे हैं, तू माला कर, तू माला का हरे कृष्णा बोल, तू या भगवद गीता पढ़, तो ये सब हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जब अकेला टाइम आएगा जहाज उड़ाने का तो कोई नहीं रहेगा साथ में, हमको अपना जहाज खुद उड़ाना है। तो कम से कम अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ताकि उस टाइम की ज़रूरत नहीं पड़े, और ज़रूरत पड़ेगा तो कोई नहीं आने वाला है। इसलिए मैं फिर से बोलता हूँ, देखो मेरा बोलने का लॉजिक एक ही है ना, मैं इसमें क्लास देता हूँ आधी घंटा रोज़ है, जैसे कि ये रियलाइज़ करने के लिए कि तुम लोग का धर्म क्या है। मैंने एक बार भी नहीं बोला कभी भी कि परिवार को नहीं करना चाहिए। मेरा 2 फैमिली है, आई हैव 2 फैमिली, एक फैमिली नहीं, मेरा दोनों फैमिली को मैं देखता हूँ, इतना सारा ऑफिस को देखता हूँ, स्टाफ को देखता हूँ, बाहर भी कुछ सामाजिक काम करता हूँ मैं, इसके बाद भी अपने लिए टाइम निकालता हूँ। हम तुम लोग भी निकाल सकते हो, इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। दिन में 7 मिनट 8 मिनट नहीं निकाल सकते क्या तुम लोग? निकाल सकते हैं आराम से, ओनली 7 मिनट भगवान के लिए एक माला करना, इट विल टेक 7 मिनट्स ओनली, कर सकते हैं हम लोग। चलो 10 बज गए, अभी मतलब कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं मेरे से। एक्चुअली आई एम टेलिंग, आधा घंटा भगवद गीता कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक जो श्लोका है भगवद गीता का इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 2-2 घंटा बोल सकते हैं, आधे घंटा में कुछ नहीं होता, बट आधे घंटा हमारा लिमिटेशन है, हम ज़्यादा नहीं बात कर सकते। क्या कोई सवाल है किसी का? आदमी स्वर्ग में जो जाता है, स्वर्ग में आने के बाद वहाँ जो कर्म करता है और जो दुष्कर्म करता है वो क्या फिर जनरेट होता है कि कर्म जनरेट होता है? नहीं, स्वर्ग में चाहे हम कुछ भी करें, स्वर्ग में हम 20 के पटा लें, 20 अप्सरा पटा लें, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई पाप नहीं लगेगा हमारे को, क्योंकि हम भोगने गए ना वहाँ पे।